Hello, students. My name is Mohammad Mohsin Hassan. I live in Raipur, Chhattisgarh. My profession is teaching. At present, I'm working as a lecturer in the English department at CCM College, Kabir Nagar, Raipur. Today, my topic is personality development and communication skills. We often discuss about personality development, especially for the engineering students. But we do not consider the concept with its depth because we don't have that much knowledge about personality development. So first, I'll explain the concept simultaneously. I'll separate both the concepts, personality and development. What is personality? Then we'll discuss about what is development. If we will not understand about personality, how we will be able to understand personality development? So it is very important that first and foremost, I'd like to tell you about personality. What is personality? Is it physical expression? How we look? How we dress up? How we talk? How we interact with the people? Is it our physical appearance? How tall we are? How handsome we are? How much shy nature we have? No. Having a good look is not a complete personality. An idol maybe have a good appearance, but it does not mean that that idol will be a living personality. So there is a difference. What is personality? Every person has its own personality. For example, some people speaks too much. They every time they go on, they won't stop because they like to speak. They want to expel themselves. That is why they want to share their thoughts with each other. Being a social creature, we cannot live our life in isolation. That is why we have often seen over talkative people. They always speak. They always sometimes blab. Always speak. So it's a first type of people that they speak. Second, those who are very reserved. They speak but on time. They don't believe in speaking too much because of their nature. So here we understood two types of people. First one, those who speaks very much. Second one, those who don't speak very much. They believe in speaking only on time. So it's a part of their personality. Personality how we develop our personality. If we will be able to overcome our weaknesses, our negativity, then we will be able to develop our personality. For example, a person has a 7 people alike. यानी कि अगर मैं हिंदी में बोलूं, एक व्यक्ति के 7 हम शक्ल होते हैं, 7 लोग एक तरह दिखते हैं. अगर मैं इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट को हिंदी में कहूं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अर्थ होता है व्यक्तित्व विकास, तो हर व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है. जैसे मैंने अभी बताया, कुछ लोग बहुत बातें करते हैं, उनका काम बात करना होता है, उनको अच्छा लगता है कि अपने विचार एक दूसरे से वो बांटें. दूसरे वो होते हैं जो बहुत शांत होते हैं, समय पर ही बोलते हैं. ठीक है, तो ये उनका अपना व्यक्तित्व होता है, ये उनकी क्वालिटी है, ये उनकी पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है. उसी तरह एक व्यक्ति के 7 हम शक्ल होते हैं, पर वो सातों एक तरह नहीं होते, उनका स्वभाव एक तरह नहीं होता, उनका नेचर एक तरह नहीं होता.
क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट, उनके विचार, उनका सोचने का तरीका एक दूसरे से अलग अलग होता है। इस तरह से वो सातों के साथ एक तरह दिखने के बावजूद भी एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये होती है हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व। इट इज़ कॉल्ड पर्सनैलिटी। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व विकास के बारे में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी कैसे? आखिर ऐसा कौन सा नुस्खा है जिससे हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं? इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी व्यक्तित्व विकास की विशेषताएं, उसके गुण, उसके ट्रेट्स होते क्या हैं। आपने देखा होगा कोई बहुत अच्छा सिंगर होता है, वो अपने घर में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, लोगों के बीच में बहुत अच्छी सिंगिंग करता है, पर अगर उसको एक स्टेज दे दिया जाए और बोला जाए भैया ये कुछ लाइन्स हैं, आप ज़रा इनको गा के सुनाइए, देन ही विल नॉट बी एबल टू सिंग। वाई? बीइंग अ गुड सिंगर, he should have that mindset to expel himself in the front of public. लोगों के सामने अपने आप को वो ठीक से रख सके, उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए, पर क्यों नहीं होती? यहाँ पे सवाल आता है व्यक्तित्व विकास का। उसकी झिझक, उसका हेजिटेशन, उसकी अंदर जो झिझक होती है, ये उसका वीकनेस बन जाती है, ये उसका वीक पॉइंट बन जाता है, ये उसकी नेगेटिविटी बन जाती है। और यही झिझक, यही वीकनेस उसे उस स्टेज तक जाकर अपना प्रदर्शन करने से रोकती। हमें अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए अपने अंदर की झिझक, अपने अंदर की कमी, अपने अंदर की वीकनेस को दूर करना बहुत ज़रूरी है। और दूर करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी वीकनेस पता होना हो। जैसे मेरी वीकनेस है कि मैं लोगों पर आसानी से विश्वास कर लेता हूँ। मेरी स्ट्रेंथ कुछ दैवी शक्ति या मे बी मेरा ऊपर वाले पे भरोसा, हद से ज़्यादा भरोसा, वो मेरी एक स्ट्रेंथ है। और मेरी वीकनेस है कि मैं आसानी से किसी पर भी विश्वास कर लेता हूँ। मेरा जो विश्वास है वो मेरी वीकनेस है, मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको ओवरकम करना। तो जब आप अपनी वीकनेस को ओवरकम करेंगे, अपनी वीकनेस के बारे में पता लगाएंगे, और ये हर व्यक्ति में खूबी होती है और एक वीकनेस होती है, तब आप अपने व्यक्तित्व को विकसित पाएंगे और समाज में, लोगों के बीच में, माशरे में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। क्वालिटी हर आदमी में होती है, बोलते हैं ना हीरे को जौहरी तराश सकता है, उसी तरीके से क्वालिटी हर इंसान में होती है, पर वो अपनी क्वालिटी को अपनी झिझक, अपनी वीकनेस, अपने उस नेचर की वजह से सामने नहीं रख पाता। तो ये उसका एक ड्रॉबैक बनता है, उसकी एक वीकनेस बनती है। तो अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए सबसे आवश्यक बात है कि हमें अपने अंदर की कमी का पता लगाकर उस कमी पर काम करना है और उस कमी को हमें अपनी ताकत में बदलना है। जैसे कि अच्छा गाना गाना, अच्छी पोइट्री लिखना, और कोई अच्छी मिमिक्री करता है, कोई भी अच्छी क्वालिटी है, ये जब हम समाज के, माशरे के सामने अपने टैलेंट को रख सकें, तब कॉन्फिडेंस के साथ रख सकें, तब हम ये समझेंगे कि हमने अपने व्यक्तित्व विकास को पा लिया। और लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि उन्हें अपनी कमी पता नहीं होती, अपनी वीकनेस को या जानबूझ के वो अनजाना कर देते हैं। इसकी वजह से उनका क्या होता है कि उनके अंदर का जो टैलेंट है उस पर उनकी वीकनेस हावी हो जाती है। तो व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी कमी को ओवरकम करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का ये 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टिप्स मैंने आपको, ट्रेट्स दिया टू ओवरकम योर वीकनेस। अपनी कमी पर आप काबू पाइए और कोशिश कीजिए कि आप एक अच्छे व्यक्ति बन के समाज के सामने, माशरे के सामने आएँ और अपने टैलेंट के साथ खुद भी आगे जाएं और सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सकें। थैंक यू वेरी मच।